Good morning, student. Again, welcome in my YouTube class. Again, today we will again to proceed our next exercise 5.2 of the chapter 5 lines and angle. In the previous class, we have discussed till the question number 1. Now today we will discuss about question number 2. The question number 2 is here. In the question number 2, line A is parallel to the B. It is given A is parallel to the B and C is the transversal line, and these transversal line divide into the A angles 1 to A. Now the first question is the pair of corresponding angle. Okay, what is the pair of the corresponding angle? We have discussed the corresponding angle. We are represented in the form of the E. Okay. E. So corresponding angles, if two angles are lie in the same side of a parallel line, that angle must be either upper part of the lines or below part of the parallel lines. Then these angle will be equal. So we can say the same side, angle 1 will be equal to the angle 5 because 1 is the upper part of the line A and B5 is the also upper portion of the line B. They are lying in the same side. So these are the pair of corresponding angle. If we take the below part, it means the angle 2 will be equal to the angle of 6 because they are also lying in the same side and they are the below part of the parallels. Suppose if we take a left side, then the value of angle 4 is equal to the angle of 8 and angle of 3 will be equal to the angle of 7. These angles are a corresponding angle. Okay. Now the next point is a pair of alternate interior angle. Today we okay. Now the next point is a pair of interior angle. We know pair of interior angle. The interior angle which are lie in the form of Z. जो Z के फॉर्म में होता है वो आपका पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल होता है. इंटीरियर एंगल, दिस एंगल विल बी इनसाइड ऑफ द पैरेलल लाइन एंड दिस एंगल विल बी अपोजिट साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल लाइन. तो एंगल 1 का ये आपका इंटीरियर या अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. तो एंगल 3 का जस्ट अंदर ही आपका ये 4 है, इसी में रिलेशन है. एंगल 3 का अपोजिट में आपका ट्रांसवर्सल के एंगल 5 है. एंगल 2 का अपोजिट में एंगल 8 है. तो दीज आर द अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. इफ यू राइट दिस एंगल, यू मस्ट राइट द कंडीशन कि these angle are equal on this condition. You must write the alternate interior angle. Third is a pair of interior angle on a same side of a transversal line. A pair of interior, it means co-interior angle. Okay. Third is a pair of interior means co-interior angle. Co-interior angle. Okay. Co-interior angle, तो we can say एंगल 2 की the same साइड में एंगल 5 है. एंगल 2 प्लस एंगल 5 इसका सम क्या होगा 180 डिग्री होगा. तो को-इंटीरियर एंगल कौन सा होगा? एंगल 2 एंड एंगल 5. उसी तरह एंगल 3 का एंगल 8 के साथ होगा. इसका भी सम क्या होगा 180 डिग्री होगा. मतलब एंगल 3 के साथ जो आपका एंगल होगा वो आपका एंगल 8 होगा बिकॉज दे आर द सेम साइड. It means they are the left side and they are the right side. Okay. Next is the vertically opposite angles. Next is the vertically opposite angles. Last question is the vertical opposite angles. We know the vertical opposite angle. Angle 4 का opposite angle क्या होगा? Angle of 2 होगा. Angle 3 का opposite angle क्या होगा? Angle of 1. वर्टिकल अपोजिट एंगल जस्ट सामने का. ओके. एंगल 5 का अपोजिट एंगल क्या होगा? एंगल ऑफ 7 होगा. एंगल 8 का वर्टिकल अपोजिट क्या होगा? एंगल ऑफ
होगा. These angles are the vertical opposite angle. Okay. It was the question number 2nd. Now we will discuss about the question number 3rd. Okay, question number 3rd is here. In this question P is parallel to the Q. It is given P, line P is the parallel to Q. We have to find the A, B, C, D, E and F. हमको बाकी रिमेनिंग एंगल आपको फाइंड करना है, जिसमें एक एंगल 125 दिया है. ओके, तो हम लेट अस स्टार्ट. फर्स्ट हम क्या करते हैं, देखते हैं एंगल E प्लस 125 का सम क्या होगा 120. इसे दे एंगल 125 प्लस एंगल ऑफ E, इसका सम क्या होगा 180 होगा ड्यू टू द लीनियर पेयर. ठीक है, ये लीनियर पेयर है, मतलब एक स्ट्रेट लाइन है. अगर उसके बगल में कोई एक ऐसा लाइन जा रहा है इसके दो पेयर बन रहे हैं, दोनों पेयर अगर स्ट्रेट लाइन को फॉर्म कर रहे हैं, तो मतलब हम कह सकते हैं ड्यू टू द लीनियर पेयर द सम ऑफ दिस एंगल विल बी 180. तो सबसे पहले हम E की वैल्यू निकालते हैं. 180 है, ये प्लस 125 है. व्हेन वी ट्रांसपोज इट विल बी कन्वर्ट इनटू द माइनस. 10 में से 5 गया 5. जब आपने इसको कैरी दिया है तो यहाँ पे 7 होगा. 7 में से 2 जाएगा 5. इट मीन्स 1 to 1 0. एंगल E इज इक्वल टू 55 डिग्री. राइट. अभी देखिए एंगल E और एंगल F ये वर्टिकली अपोजिट है. ओके, तो एंगल E की वैल्यू और एंगल F की वैल्यू दोनों 55 होगा ड्यू टू द वर्टिकल अपोजिट एंगल के कारण. एंगल F निकल गया. अभी देखिए फिर से देख लेते हैं. E है आपका A, E A के इक्वल होगा करस्पॉन्डिंग एंगल से, या फिर F की वैल्यू A के इक्वल होगा अल्टरनेट एंगल से. तो यू कैन अप्लाई एनी वन ऑफ देम. ओके, तो वी कैन से द वैल्यू ऑफ एंगल E is also equal to the angle of A. The value of E is 1, value of E is 55, then value of A will be also 55 due to the corresponding angle. Okay, due to the corresponding angles. Okay, अभी देखिए अगर आपको A मिल गया, A के जस्ट सामने क्या है एंगल C है, इसमें वर्टिकल अपोजिट एंगल है, तो वी कैन से एंगल C की जो वैल्यू होगा वो A के इक्वल होगा. कैसे, ये भी आपका 55 होगा क्योंकि A की वैल्यू 55 है, तो C की वैल्यू भी 55 होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल के कारण. राइट. अभी देखते हैं इस लाइन के एबव का एंगल, इस लाइन के एबव का एंगल आपस में इक्वल होगा, सेम साइड है ड्यू टू द करेस्पॉन्डिंग एंगल. एंगल D की जो वैल्यू होगा वो आपका 125 होगा. कैसे, करेस्पॉन्डिंग एंगल से, करेस्पॉन्डिंग एंगल. ओके, अगर आपके पास D मिल गया तो D के जस्ट वर्टिकल अपोजिट में एंगल क्या है B है. वेरी गुड. तो यू कैन से एंगल B is also equal to the angle of D. D की वैल्यू कितना है 125, आप लिख लीजिए 125 डिग्री. कैसे, वर्टिकल अपोजिट एंगल. ओके, तो देखिए यहाँ पे एंगल A की वैल्यू मिल गया, B की वैल्यू मिल गया, C की वैल्यू मिल गया, D की वैल्यू मिल गया, E की मिल गया और F की मिल गया. इस तरह से हम जो रिमेनिंग जो एंगल्स हैं सबकी वैल्यू हमने फाइंड कर लिया विद द हेल्प ऑफ यूजिंग द प्रॉपर्टीज. ओके, तो दिस वाज इट वाज द रिजल्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 3rd. ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4th क्या कह रहा है. क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 इज फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ L इज पैरेलल टू द M. in this figure the line L is parallel to the line M and we have to find the value of x. okay, तो देखिए we use the properties of the parallel line. अगर ये पैरेलल लाइन है, सपोज वी टेक इसको हम एंगल, ओके चलो इसको देखते हैं, इसको आप 1 मान लेते हैं, इसको हम मान लेते हैं. अभी देखिए इस लाइन के एबव का एंगल और इस लाइन के एबव का एंगल भी आपस में इक्वल होगा. वी कैन से एंगल 1 इज इक्वल टू द 110. क्यों, करेस्पॉन्डिंग एंगल. ड्यू टू द करेस्पॉन्डिंग एंगल दिस एंगल विल बी इक्वल टू द 110. ठीक है, ये एंगल 1 हो गया. ओके, प्लीज सी हियर दिस इज ए स्ट्रेट लाइन and the sum of this angle will be 180 degree. How?
linear pair. With the help of the linear pair, we can say the sum of these two angles is a 180 degree. If the value of x, if 180 is here, plus is here, when we transport it will be converted into the minus. The angle x is equal to the 70 degree. Okay. It was the value. It is the value of x. Second part you will try. It is the same like the question. It is same like the first part. Second part you will try. Let us see question number 5. Question number 5 here. In the question 5, question says AB is parallel to the AB is parallel to the DE, DE या फिर DG कह सकते हैं, और यहाँ पे BC is parallel to the EF. अगर ये है तो आपको इसमें एंगल A की वैल्यू, B की वैल्यू 70 दिया है, तो सबसे पहले आपको G के एंगल निकालना है. अभी देखिए कि these लाइन आर पैरेलल, अगर ये लाइन पैरेलल है, अगर ये इसका ट्रांसवर्सल लाइन है, मतलब इस लाइन के एबव का एंगल और इस लाइन के एबव का एंगल आपस में इक्वल होगा. अगर ये 70 है तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 70 होगा ड्यू टू द करेस्पॉन्डिंग एंगल. तो वी कैन से एंगल B, एंगल वी कैन से एंगल D G C विल बी इक्वल होगा एंगल A B C. ओके. अभी देखिए ABC की वैल्यू कितना है, 70 डिग्री है, तो DGC की वैल्यू भी 70 डिग्री होगा. वाई? ड्यू टू द करेस्पॉन्डिंग एंगल, करेस्पॉन्डिंग एंगल. ओके. ये करेस्पॉन्डिंग एंगल से होगा. क्यों? क्योंकि यहाँ देखिएगा AB इस पैरेलल है DG के. AB लाइन है वो DG के पैरेलल है, तो इसका मतलब करेस्पॉन्डिंग एंगल से आपस में क्या इक्वल हो जाएगा, और इसकी वैल्यू क्या होगा, 70 डिग्री हो गया. ओके. सेकेंड, अब देखते हैं यहाँ पे GC या फिर BC इस पैरेलल टू द EF. अगर BC EF के पैरेलल है, अगर सपोज ये लाइन पैरेलल है, तो ये जो आपका आएगा ये ट्रांसवर्सल लाइन कहलाएगा. तो इस लाइन के एबव का एंगल और इस लाइन के एबव का एंगल आपस में इक्वल होगा. तो वी कैन से एंगल D G C का जो एंगल होगा वो इक्वल होगा, ठीक है, एंगल DEF के, एंगल DEF के, राइट. और DGC की वैल्यू आपके पास पता है, आपके पास दिया है DGC की वैल्यू कितना है, 70 डिग्री है, तो इसकी जो भी वैल्यू होगा वो भी 70 डिग्री होगा. कैसे? सेम कंडीशन ड्यू टू द करेस्पॉन्डिंग एंगल. ठीक है. ड्यू टू द करेस्पॉन्डिंग एंगल दिस एंगल विल बी इक्वल टू द 70 डिग्री, एंड ड्यू टू द पैरेलल कंडीशन इट विल बी आल्सो इक्वल टू द 70 डिग्री. ऑलराइट. ओके. लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 6. In question number 6, the condition is given. आपको एंगल्स आर गिवन, आपको इस एंगल को चेक करके बताना है क्या ये पैरेलल लाइन की कंडीशन है कि नहीं है. मतलब आपको शो करना है कि इज L इज पैरेलल टू द M. ओके. तो वी नो फॉर द पैरेलल कंडीशन इफ टू लाइन आर द पैरेलल इट मीन द सम ऑफ कोइंसिडेंट एंगल विल बी 180 डिग्री. अभी हम चेक करते हैं 126 प्लस 44. ओके. अभी चेक करते हैं क्या इफ इसका सम अगर 180 डिग्री के इक्वल होगा तब तो ये पैरेलल होगा. अभी चेक करते हैं 6 4 10 4 2 6 1 7 और ये 170, ये 170 180 के इक्वल नहीं है. ओके. अगर ये इसके इक्वल होता तो हम कह सकते हैं कि ये पैरेलल लाइन है, तो ये इसके पैरेलल नहीं है. वी कैन से L इज नॉट parallel to M because the sum of coincident angle is not equal to 180 डिग्री, क्योंकि इसका सम जो है 180 डिग्री के इक्वल नहीं है. सो वी कैन से इट इज नॉट पैरेलल टू द L इज नॉट पैरेलल टू द M. ओके. द थर्ड पार्ट ऑफ द सेम क्वेश्चन, इसका थर्ड पार्ट देखते हैं 6 का. अब आपको चेक करें क्या ये पैरेलल है कि नहीं है. ओके. अभी देखते हैं कि L एंड M अगर ये पैरेलल होगा
इस एंगल का सम इस एंगल की वैल्यू इसके इक्वल होगा, या फिर कैसे ड्यू टू द वर्टिकल अपोजिट इट विल बी आल्सो इक्वल टू द 57. ओके, वी कैन से इसको एंगल 1 मान लेते हैं. लिखेंगे इफ L इज पैरेलल टू M, अगर M पैरेलल होगा तो एंगल 1 की वैल्यू एंगल 57 के इक्वल होगा. कैसे? वर्टिकल अपोजिट एंगल अगर पैरेलल होगा तो. ठीक है, अभी देखते हैं इसकी वैल्यू कितना मिल गया. एंगल 1 की जो वैल्यू हो गया 57 मिल गया. ठीक है, अब चेक करते हैं इस को इंटीरियर एंगलों का सम. अगर इनका सम अगर 180 हो गया तो दिस लाइन विल बी द पैरेलल लाइन. देखते हैं 57 प्लस 123 इसका ऐड करते हैं. 7 3 10 कैरी 1 5 2 7 1 8 ये 1. तो कह सकते हैं ड्यू टू को इंटीरियर एंगल ड्यू टू द को इंटीरियर एंगल. ओके, या फिर ड्यू टू द को इंटीरियर एंगल्स we can say L is parallel to the M. Okay, अभी देखते हैं sum of co-interior angle. If the sum of co-interior angle is 180 degree, then we can say these lines are the parallel lines. तो ये आपका parallel line है. Okay, तो remaining portion you will try it and the remaining question you will try it. Okay, so that's all for today. We will discuss about your doubt in our next lecture. So that's all for today and have a nice day.